السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا ہماری ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، سابق حکومت نے سستی گیس خریدنے کا موقع ضائع کیا۔ امپورٹڈ حکومت روس سے سستا تیل خریدنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 99 روپے اضافہ ہوا، عوام ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں خوشی ہے کہ دو مخالف گروپس کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے۔ اسمبلی اپنی خود مختاری سرنڈر کر چکی ہے، رضا ربانی کہتے ہیں پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے پہلے ہی پارلیمنٹ کو غیر فعال صوبائی اسمبلیوں کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا، سویلین سرکاری عہدیدار آئین کی دانستہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کورونا میں اضافے کو نہ روکا گیا تو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صورتحال خطرناک نہیں لیکن تشویشناک ضرور ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ، نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا، دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ جدید مغربی ہتھیاروں کے لیے یوکرین کی دیرینہ درخواستوں اور دعاؤں کا جواب ملنا شروع ہو گیا، کینیڈا نے بڑا اعلان کر دیا، کہا وہ جنگ زدہ ملک میں درجنوں نے بختر بند اہلکار بردار گاڑیاں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مینڈیٹ مخالف گروہ اوٹاوا واپس آ گئے، لیکن گرفتاریوں اور تقسیم کے درمیان تحریک کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ تحریک اس ہفتے کے آخر میں ایک معتدل چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی۔ ٹورنٹو میں بارش اور گرج چمک کا امکان، کینیڈا کے دن کی آتش بازی متاثر ہونے کا خدشہ، ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز آنے والا طوفان شام کے اوقات میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے توہین آمیز بیانات پر برہم، سپریم کورٹ نے کہا ادے پور میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار بھی نوپور شرما ہے، انہیں توہین آمیز بیانات پر قوم سے ٹی وی پر آ کر معافی مانگنی چاہیے۔ امریکی صدر کا روس کی شکست تک یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا اعلان، یوکرین میں رہائشی عمارت پر روس کا میزائل حملہ، 18 افراد ہلاک، میزائل حملے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے 7 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تیل و گیس مہنگی داموں خریدنے پر زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے، ہم قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ سے متعلق اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے پاور پلانٹس کی مرمت کر کے انہیں استعمال کے قابل بنایا، جبکہ سابق حکومت نے ان کی مرمت کے حوالے سے کچھ نہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، سابق حکومت نے سستی گیس خریدنے کا موقع ضائع کیا، جبکہ ہم نے مہنگی گیس خریدنے سے گریز کیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میٹرو، اورنج لائن، بلو لائن اور گرین لائن پر پیش رفت اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے اورنج لائن میٹرو بس کے اطراف لینڈ اسکیپنگ مکمل کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ 7 دن کے اندر لینڈ اسکیپنگ کا کام مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔
साथ ही उन्होंने मेट्रो बस के किरायों को कम करके आवाम को सहूलत देने की भी हिदायत दी। इजलास के 12 कहो बाईपास मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वजीर आजम ने मंसूबे की तामीर के दौरान जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वजीर आजम ने 12 कहो बाईपास पर भी काम तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत दी और कहा कि मंसूबे में शफाफ तरीके से बिडिंग का अमल यकीनी बनाया जाए। इजलास को मजीद बताया गया कि रावल चौक फ्लाईओवर वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की बहाली और इसे वसी करने के मंसूबे का आगाज भी जल्द कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को 1100 बिलियन रुपए का NRO2 दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अमेरिका की हुकूमत तब्दील करने की साजिश के नतीजे में इक़्तिदार में आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। इमरान खान का मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को 1100 बिलियन रुपए का NRO2 दे दिया। मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 99 रुपए, डीजल की कीमत में 133 रुपए इजाफा हुआ। अवाम इसके खिलाफ कल हमारे एहतजाज में शिरकत करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वज़ीर आला पंजाब को दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस के अलावा बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि पंजाब हुकूमत तैयार है कि पंजाब असेंबली में दोबारा इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन के 3-4 रोज बाद होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब और हमजा शहबाज से मशावरत हुई है। 17 जुलाई तक हमजा शहबाज वजीर आला रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें खुशी है कि 2 मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ है। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तेफाक हुआ है। ये दोनों जानिब की कामयाबी है। इसी दौरान PTI के वकील बाबर ऐवान ने अदालत को आगाह करते हुए बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से राब्ता हुआ है। उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला तस्लीम कर लिया है। IG, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। इस पर बाबर रहमान ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन के वाले से तहफ़्फ़ुज़ात है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के वजीर आला के इंतखाब में मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार किए बगैर वोटों की दोबारा गिनती का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सीनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि ईवान की अंदरूनी कार्रवाई पर अब अदलिया उन्हें हिदायत दे रही है। अब खुद के सिवा किसी को कसूरवार नहीं समझा जा सकता। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां अपनी खुद मुख्तारी सरेंडर कर चुकी हैं। इस्लामाबाद से जारी बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि ऐवान की अंदरूनी कार्रवाई पर अब अदलिया उन्हें हिदायत दे रही है। अब खुद के सिवा किसी को कसूरवार नहीं समझा जा सकता। PP रहनुमा ने मजीद कहा कि सिविलियन सरकारी अहदेदार आइन की दानिस्ता खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमें ऐसी नहज पर पहुँचा दिया गया जहां ऐवान की कार्रवाई अदालती लाइन्स पर चल रही है। उनका कहना था कि सियासी जमातों ने अपनी जो जगह गंवाई वो हमारी जिंदगियों में बहाल नहीं हो सकेगी। अदालती मदाखलत ऐवान की अंदरूनी कार्रवाई में मदद नहीं कर रही। मियां रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि सियासी जमातें नुकसान से कबल अपनी आंखों से पट्टियां हटाएं। पार्लियामान और सूबाई असम्बलियां कह रही हैं कि हमें सांस लेने दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान देखा गया है, जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर कुछ सख्त फैसले लेने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मज़ीद तहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान देखा गया है, जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर कुछ सख्त फैसले लेने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये बात उन्होंने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब कर रखा था। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 17 जून को
सूबे में सिर्फ 38 केसेस थे जिनका तशखीसी तनासुब 3.6% था और अगले रोज 18 जून को केसेस की तादाद बढ़कर 122 हो गई। इसमें 30 जून तक रिपोर्ट होने वाले केसेस 377, 531 और 465 से बढ़ते चले गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते 24 तक 30 जून के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में 30 जून को सबसे ज्यादा 19.76% केसेस, 29 जून को 19.09, 28 जून को 19.24, 27 जून को 9.21, 26 जून को 22.65, 25 जून को 21.71 और 24 जून को 19.65% केसेस का तनासुब है। इस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मज़कूरा हफ्ते के दौरान कराची में केसेस की शरह में 19 से 21% के दरमियान इजाफा हुआ, जबकि हैदराबाद में केसेस के रुझान में कमी देखी गई। कराची में कोरोना केसेस की हफ्तावार औसत 17.47, हैदराबाद में 1.01 और सूबे के बाकी हिस्सों में 1.05% रिकॉर्ड की गई है। इस तरह मज़कूरा हफ्ते के दौरान सूबाई औसत तनासुब 7.66% रहा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर से 18 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये से ज़ायद का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर से 18 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया कि पेट्रोल पर 14 रुपये 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोल की कीमत 233.89 रुपये से बढ़ाकर 248.74 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 263.31 रुपये से बढ़ाकर 276.54 रुपये फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत 211.43 रुपये से बढ़ाकर 230.26 रुपये फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 207.47 रुपये से बढ़ाकर 226.15 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। मज़ीद खबरें भी इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।